بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، پاکستان کے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی نے کل حلف اٹھا لیا اور 6 ایسے اقدامات کر دیے جن کے فوری طور پر کرنے سے حکومت جو ہے وہ پریشان ہو گئی ہے، اور دوسری طرف چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے 4 کون سے بڑے چیلنجز ہیں جو انہیں فیس کرنے ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ ان کا بہت بڑا امتحان ہوگا۔ ان میں سب سے پہلا جو ان کو فیس کرنا ہوگا، پہلا امتحان جس کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، وہ ہے مخصوص نشستوں کا 8 اکثریتی ججز کا فیصلہ، کہ اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی 8 ججز کے اکثریتی فیصلے پر عمل درآمد کیسے کرواتے ہیں۔ دوسرا جو امتحان ہے سب سے بڑا، وہ ہے ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل، جو قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے 13 ماہ گزر گئے۔ انہوں نے جو بینچ بنایا ایک 6 رکنی کا، پھر اس کے بعد لارجر بینچ کے لیے وہ اس کی کمیٹی کو بھیجا گیا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ خود چلے گئے، لیکن انہوں نے لارجر بینچ تشکیل نہیں دیا، اور نہ ہی اس میں خود جو ہے وہ بیٹھنا مناسب سمجھا، کیونکہ ان کے وہاں پر جلتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے، وہ ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کا فیصلہ کتنی دیر میں اس کی سماعت مقرر کرتے ہیں لارجر بینچ بنا کر، اور اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ تیسرا ناظرین ہے ارشد شریف قتل کیس، جو عمر عطا بندیال جب چیف جسٹس تھے ان کے دور سے شروع ہوا، اور آج تک 2 سال ہو گئے ہیں ان کے قتل کا جو ہے وہ از خود نوٹس کیس پر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اور اس کے بعد چوتھا امتحان جو ہے وہ ہے 6 ججز کا ناظرین خط، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا تھا۔ پہلے چیف جسٹس عامر فاروق کو لکھا تھا، اور پھر دوسرا خط انہوں نے لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کے نام پر، اور ان سے رائے طلب کی تھی۔ تو اب یہ ایک امتحان ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے عدلیہ کے اندر اور ایجنسیوں کی جانب سے۔ یہ 6 ججز نے واضح اپنے خط کے اندر لکھا، پھر اس کے بعد جب قاضی فائز عیسیٰ نے رائے طلب کی تو تمام ہائی کورٹس نے اپنی رائے جو ہے وہ اس پر دیں کہ یہ مداخلت ہمارے عدلیہ کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ایجنسیوں کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن قاضی صاحب بدقسمتی کے ساتھ اس پر بھی کچھ نہ کر سکے۔ یہ 4 امتحان ہو گئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے جو انہیں آتے ساتھ فیس کرنے ہیں۔ ناظرین، کل جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں وہ 6 اقدامات کیے ہیں۔ پہلا آتے ساتھ انہوں نے ایک کیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بحال کر دیا پرانے والی، جس میں جسٹس منصور علی شاہ کا مطالبہ تھا کہ آپ آرڈیننس جو آیا ہے اس پہ فل کورٹ اجلاس طلب کیا جائے، اور اس کے بعد پھر وہ فل کورٹ اجلاس جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے کہ آیا آرڈیننس جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے، کمیٹی پرانی ہوگی یا نئی کمیٹی ہوگی۔ تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کل آتے ساتھ پرانی کمیٹی بحال کر دی، اور دوسرا انہوں نے فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا کل کے روز۔ یہ 2 مطالبات تھے جو جسٹس منصور علی شاہ کے تھے، وہ مان لیے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کل فل کورٹ اجلاس کے اندر کہ آرڈیننس کے اوپر بات ہوگی یا پرانی کمیٹی جو ہے اس پر انہوں نے کیا، یا آرڈیننس، کیونکہ ایک طرف انہوں نے حکومت کو بھی دکھا دیا کہ میں نے آرڈیننس پر عمل درآمد کر لیے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس آرڈیننس کے تحت چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ تیسرا جج جو ہے کمیٹی کے اندر اس کی مرضی کہ وہ کون سا شامل کرتے ہیں۔ تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے جسٹس امین الدین کو کمیٹی سے آؤٹ کر دیا، اور ان کی جگہ جسٹس منیب اختر کو ان کر دیا۔ اور آرڈیننس سے پہلے جو تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر جو اس پہ بل تھا، اس میں یہ تھا کہ 3 سینئر چیف جسٹس اور اس کے بعد 2 سینئر 3 ججز جو ہیں وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے، اور 184(3) اور جو اس کے سو موٹو سے ریلیٹڈ کیسز ہوں گے ان کے بینچ کی تشکیل جو ہے وہ 3 رکنی کمیٹی بنائے گی۔ یہ 2 کل فیصلے کیے۔ اس کے بعد انہوں نے 7 نومبر کو جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا۔ جوڈیشل کونسل ناظرین، اس میں جو ججز کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے شکایت درج ہوتی ہیں، کوئی عام شہری جا کے جمع کروا دیتا ہے، یا کوئی ادارے میں سے کوئی جا کے درخواست جمع کروا دیتا ہے کہ ان کا مس کنڈکٹ انہوں نے کیا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے، چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، چاہے وہ ججز کا معاملہ ہے۔
तो अब जुडिशल काउंसिल के अंदर 5 मेंबरान हैं, पहले ये मेंबर नहीं थे। चीफ जस्टिस एक मेंबर होता है, उसका चेयरमैन जो चेयरपर्सन होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं जुडिशल काउंसिल के। उसके बाद 2 सीनियर तरीन जजेस होते हैं जो कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और ये ऑलरेडी जो है वो पहले भी जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं, लेकिन अब चीफ जस्टिस जैसे ही यही अफरीदी बने हैं तो ये और 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 और 2 हाई कोर्ट्स के जजेस होते हैं, जिसमें एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं और उसके बाद बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ हैं। अब ये 5 जो मेंबरान हैं जुडिशल काउंसिल के, इसके अंदर भी बड़े अहम मामलात हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रह चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, जस्टिस शहजाद अहमद खान, उनके हवाले से एक दरखास्त गई थी कि उनकी बेटी ने यानी कि गाड़ी इनकी थी, वो गाड़ी इस्तेमाल करते हुए उनकी बेटी से हादसा पेश आया था और उसमें जो जहां भाग हो गए थे शहरी 1-2, तो उस मामले को जो है वो एक दरखास्त दी गई थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये एक मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से भी दरखास्तें गई हुई हैं और मेन जो दरखास्तें हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के हवाले से हैं। मिसकंडक्ट के हवाले से 12 जुलाई का जब फैसला आया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो 14 जुलाई या 15 जुलाई को इन 2 जजेस साहिबान ने एक इख्तलाफी नोट लिखा था जिसमें डायरेक्शन दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि अगर कोई गैर आईनी फैसला हो तो उस पर अमल दरामद ना करें। और फिर जब डिटेल जजमेंट आई थी 8 एक्सिटी जजेस की जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से, उसमें इन 2 जजेस का बाकायदा तौर पर लिखा गया था कि इनको ये तहजीब नहीं देता कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस होने के नाते एक वो लिखें कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करें, इन्होंने एक मिसकंडक्ट किया है। तो ये एक बहुत खतरनाक जो है वो अब इन 2 जजेस के हवाले से हो सकता है कि जुडिशल काउंसिल अगर इनकी कार्रवाई करता है तो इनको घर जाना पड़ जा सकता है। और बाकी उन्होंने फिर दीगर मामलात भी करने हैं कि कौन से जजेस हैं, उसमें ये फैसला होगा कि आया इनकी कार्रवाई बनती है या नहीं बनती। मुख्तलिफ जजेस के हवाले से जैसे शिकायत गई हुई हैं तो जुडिशल काउंसिल इस चीज का फैसला करेगी किस जज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और किसकी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट जो केस होगा वो होगा जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के हवाले से। अब नाजरीन, इसके बाद उन्होंने एक इंसदाद दहशतगर्दी के जितने भी जजेस हैं उनका एक इजलास तलब कर लिया। अब उस इजलास के अंदर उस इजलास के तलब करने से हुकूमत क्यों कांप रही है, हुकूमत क्यों परेशान हो गई है, उसकी वजह यह है कि 9 मई के जितने केसेस हैं और जितना उसमें डिले आ रहा है तो उस हवाले से वो कोई हुक्म जारी कर सकते हैं कि आप इनके फौरी फैसले करें और फौरी तौर पर जो है जो उनको अगर कोई बरी होता है तो उसे बरी करें, कोई अगर किसी को सजा बनती है तो आप उसको सबूतों की बुनियाद पर सजा देनी है तो उसको सजा दें और इन केसों को निपटाएं। तो ये हुक्म जो है वो दिया जा सकता है और उसके हवाले से जो भी फिर उनके जो जजेस की राय होंगी उनको भी मलूज़े खातर रखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद नाजरीन एक तो ये मामला हो गया। 5वां जो है वो उन्होंने किया है जनाब के कमरा नंबर 1 जो काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने आते साथ एक इकदाम किया था कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, और जब फिर उनको तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा और उसके बाद जजेस जो हैं वो अपने सवाल करते थे तो काजी फाइज ईसा को गुस्सा आ जाता था। फिर इमरान खान का जब मौका आया लाइव स्ट्रीमिंग का तो फिर इमरान खान के केस में, नैब वाले केस में लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत नहीं दी थी। तो अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने क्या किया कि उन्होंने आते साथ जो सबसे बड़ा कदम उठाया वो ये किया कि उन्होंने कहा जी कि आप जितने भी कमरे वो अदालत में कमरे हैं उनके अंदर जितने भी केसेस होंगे मुफादे आमा के वो बराह रास्त दिखाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर। तो ये एक बड़ा कदम है कि किसी में कोई वो नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस जब काजी फाइज थे तो उन्होंने कमरा नंबर 1 में रखा था और वो कह रहे थे कि भाई ये केस जो है वो बराह रास्त दिखाया जाएगा, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तमाम केसेस की समाअत जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग करने का कहा है और उसके बाद उन्होंने इंतजामात करने का और जो कैमरे वगैरह और जो चीजें देखनी है उनका उन्होंने कह दिया कि इसका एक वो एस्टिमेट लगाया जाए कितना खर्चा है और इसको फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद किया जाए। और साथ ये कह दिया कि अगर कोई खवातीन केसेस के हवाले से हैं, खवातीन वो अगर लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं आना चाहेंगी, अगर वो मना कर देंगी तो फिर वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं दिखाई जाएगी। लास्ट में नाजरीन एक जो सबसे बड़ा किया था जिस पर कल बातें की जा रही थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बना दी है, तो आया अब वो जस्टिस मंसूर अली शाह उसमें बैठेंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर बैठेंगे। तो नाजरीन कल रात गए
8 बेंचेस तश्कील दिए गए हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो वीडियो लिंक पर मीटिंग में लिया गया और आने वाले हो सकता है सोमवार या मंगल को उनका कल या परसों मिनट्स ऑफ मीटिंग भी जो है वो जारी कर दिए जाएं। तो ये एक बड़ा इकदाम है। यहाँ से एक चीज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वाज़ेह कर दी, जो हुकूमती कुछ सहाफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहे थे, कुछ हुकूमती अरकान प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बनने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सुपरसीड हो गए हैं, ये इस्तीफा दे देंगे या इस्तीफा नहीं देंगे तो सुपरसीड हो गए हैं, अब ये सीनियर तरीन नहीं रहेंगे, सीनियर तरीन रहेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। तो कल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कमेटी के अंदर उन्हें शामिल करके और वेबसाइट के ऊपर अपडेट करने के बाद ये पैगाम दे दिया क्लियर कि जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन है और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और उसके बाद फिर नंबर है जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। अब नाज़रीन हुकूमत के लिए परेशानी भी बन गई और हुकूमत अब आने वाले दिनों में एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी तरमीम करने जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 5 अरकान जो हैं सीनियर तरीन जजेस यानी कि चीफ जस्टिस के बाद 4 सीनियर तरीन जजेस जो हैं वो उस कमेटी का हिस्सा होंगे, ताकि हुकूमत के 2 जजेस जो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वो इस कमेटी का हिस्सा बन सकें। तो ये देखते हैं, अब कल बिल पेश करते हैं, आने वाले हफ्ते में यानी कि वो बिल किसी भी दिन पेश कर सकते हैं और क्योंकि वो सादा अक्सरियत से पास करना ये कर लेंगे। अब नाज़रीन एक खबर, नजम सेठी साहब उन्होंने एक दावा किया है। कल नाज़रीन पूरे मीडिया के ऊपर किसी किस्म की कोई ऐसी खबर नहीं चली कि चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध के जो सीएम है मुराद अली शाह ये वहां नहीं गए, जबकि मरियम नवाज यहां से चली गई, गिलगित बल्तिस्तान से गवर्नर आ गए, केपी से गंडापुर सीएम के अलीमीन गंडापुर आ गए, गवर्नर केपी आ गए, पंजाब से जो है वो गवर्नर चले गए, तो ना गवर्नर सिंध आए, ना गवर्नर ना वजीर आला सिंध आए और ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिरकत की। तो नजम सेठी साहब ने यह दावा किया है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी की ख्वाहिश थी कि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन जब उनकी वो बात ना हुई तो फिर उनकी अगली ख्वाहिश थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। अब आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ARY से गुफ्तगू करते हुए, वसीम बदामी का शायद शो था, तो उन्होंने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और अब 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक इंटरव्यू दिया BBC उर्दू को और उसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे भी नहीं पता था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनेंगे। मतलब कि पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, वोट तो पीपल्स पार्टी ने दिए, लेकिन इनको इस चीज का नहीं पता था कि चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह नहीं बनेंगे। अब नजम सेठी साहब के बकौल उनका यह दावा है कि ये पैगाम जस्टिस याहिया अफरीदी, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए नहीं है कि उसमें शिरकत ना करके उन्होंने उनको पैगाम दिया, बल्कि ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान को है, शहबाज शरीफ को है कि आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया। जब बातें हुई कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे तो अंदर जाके अगर आपने कहा जी कि जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं होंगे, तो ये एक किस्म का पैगाम गया है बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से हुकूमत को कि आपने ठीक नहीं किया। और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी कहते रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे कामरान मुर्तजा के थ्रू, लेकिन अब वो भी जो है वो तनकीद कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जाहिर बात है कि खुलकर फौरी तौर पर सामने नहीं आएंगे, उन्हें पता है कि अभी मामला इस तरीके से हुए हैं, हम आपस में मुलाकातें करते रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो ये नाजरीन है, कल का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए। देखते हैं कि कल अब वो क्या करने जा रहे हैं और कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मजीद खबरें जो हैं वो मंजर आम पर आएंगी। और एक बात नाजरीन के मुझे लगता है कि 2 एडहॉक जजेस जो हैं उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ गई है। वो कैसे कि जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद को और जस्टिस मजहर मियां आलम खेल को एडहॉक जज तैनात किया था जुडिशल कमीशन ने, नो डाउट कि उस वक्त जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद 9 थी और अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद 13 हो गई है और हुकूमत का पलड़ा उसमें भारी है। लेकिन फिर भी मुश्किलात का सामना इस तरीके से हो सकता है कि अगर कोई दरखास्त मियां एडहॉक जज जस्टिस मियां मजहर आलम खेल के हवाले से चली जाए जुडिशल काउंसिल में, तो फिर उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वो कैसे कि जब इनकी तैनाती हुई थी तो जस्टिस मियां मजहर आलम खेल जो हैं वो आना नहीं चाहते थे। उन्होंने काजी फाइज ईसा को एक मैसेज दिखाया था, मैसेज किया था व्हाट्सएप पर, और काजी फाइज ईसा ने जुडिशल कमीशन में वो मैसेज सबको दिखाया था कि जी जस्टिस मजहर मियां आलम खेल कह रहे हैं कि मैं जो है वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर वहां जो ऑब्जेक्शन उठाने वाले थे वो सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह थे। उन्होंने कहा था कि अगर एक जज प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर उसे सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का जो है वो उनका वो नहीं होना चाहिए। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी
اس وقت ان کی جو وہ تھا اس کی تائید کی، اور انہوں نے کہا کہ جسٹس جمال خان جسٹس میاں مظہر عالم خیل کو جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے جج، ایڈ ہاک جج، کیونکہ یہ پریشر برداشت نہیں کر رہے تو پھر یہ فیصلے نہیں کر سکیں گے. تو ان کو جو ہے اگر ایک جج کی برداشت ہی نہیں ہے کہ وہ پریشر برداشت کر سکے تو پھر انہیں جج بیٹھنے کا جو ہے نا وہ نہیں انہیں بیٹھنا چاہیے سپریم کورٹ میں. تو اب یہ جو ہے وہ مستقبل میں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ایڈ ہاک ججز کا مستقبل کیا ہوگا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.